میں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے اپنے ننیال کے گاؤں میں آئی تھی۔ ایک دن میں نانا ابو کی زمینوں کی سیر کو نکلی تو ایک لڑکا نہ جانے کہاں سے نکل آیا۔ وہ بولا مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے اسے بے عزت کر دیا اور بولی شادی کے لیے کیا تم ہی رہ گئے ہو میرے لیے؟ وہ ایک دم اداس ہو گیا اور مجھے بد دعا دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں اس بات کو بھول کر اگلے دن جیسے ہی سیر کو نکلی تو پیاس محسوس ہونے لگی۔ میں نے نہر سے پانی پی لیا، تب اچانک وہاں سے ایک عورت گزری اور بولی مبارک ہو بیٹی، جلد ہی تو صحت مند بچہ جنے گی۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگی اور بولی خالہ میں تو ابھی کنواری ہوں، بھلا بچہ کیسے جنوں گی؟ یہ سنتے ہی اس عورت کا رنگ فک ہو گیا اور بولی کمبخت یہاں سے بھاگ جا۔ میں گھر آ گئی تو اماں کو سارا قصہ سنایا۔ اماں بولی جاہل عورت ہوگی، کوئی دھیان نہ دے ایسی باتوں پر۔ یوں میں یہ بات بھول کر سو گئی۔ اچانک رات 3 بجے میری آنکھ کھلی تو ہوش فنا ہو گئے کیونکہ میرے پیٹ میں شدید درد تھا۔ امی نے دائی کو بلایا تو میں نے ایک بچے کو جنم دے دیا، مگر ہوش تو تب فنا ہوئے جب بچے کی شکل پر نظر پڑی، کیونکہ یہ بچہ تو ہو بہو اسی لڑکے جیسا۔ میرا نام مہک ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اور بہت ہی لاڈلی اولاد تھی، اسی لیے میں کافی بگڑی ہوئی تھی۔ میری ہر بات حرف آخر ثابت ہوتی تھی اور میں انسان کو انسان ہی نہ سمجھتی تھی۔ میں نے BA کے امتحانات پاس کیے تو گھر میں ضد لگا لی کہ میں نے ہر حال میں نانا ابو کے گاؤں میں ہی چھٹیاں گزارنے جانا ہے۔ امی بھی بہت عرصے سے نانا ابو کے گھر جانے کا پلان کر رہی تھی، مگر مصروفیت کے باعث کبھی جا ہی نہ پاتی تھی۔ اس دفعہ جب میں نے گھر میں ضد کی تو ابو نے بھی میری بات مان لی اور زبردستی امی کو گاؤں کی طرف روانہ کر دیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی، لیکن میں کہاں جانتی تھی کہ گاؤں تو میری زندگی ہی بدل کر رکھ دے گا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی علم ہوتا کہ گاؤں کا پانی مجھے راس نہیں آئے گا تو شاید میں کبھی خواب میں بھی گاؤں کا نام نہ لیتی۔ بات کچھ یوں ہے کہ میں اور میری امی دونوں ہی گاؤں کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ وہاں پر نانا نانی نے ہمارا بہت ہی خوبصورت استقبال کیا تھا۔ میری خالائیں اور ان کے بچے بھی میرے والے صدقے جاتے تھے۔ شروع سے ہی مجھے بہت سر چڑھایا گیا تھا، اسی لیے میں اتنی توجہ پا کر مزید مغرور ہو گئی تھی اور گاؤں میں جب جہاں جانے کو دل کرتا منہ اٹھا کر چلی جاتی اور کسی سے اجازت لینا یا کسی کو بتانا بھی گوارا نہ کرتی۔ ایک دن میں اور میری کزنز ہم گاؤں کی سیر کو نکلے تو میری نظر ایک لڑکے پر پڑی۔ وہ مجھے دور سے درخت کے پیچھے سے دیکھ رہا تھا۔ میری کزن ہنسنے لگی اور کہنے لگی لگتا ہے کہ تم اس گاؤں کی ہی ہو کر رہ جاؤ گی، شاید تمہارے بہت رشتے آنے والے ہیں۔ میں ہنس کر بولی میں یہاں پر چھٹیاں گزارنے تو ضرور آیا کروں گی، لیکن گاؤں کے ماحول میں میرا گزارا ناممکن ہے۔ یہ بات آئی گئی ہوگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکا تو سچ میں ہی میرا دیوانہ ہو گیا تھا۔ ایک دن میں اکیلی ہی نانا ابو کے باغ کی سیر کو نکل کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ یہ باغ ہمارے گھر سے بہت قریب تھا، میں کسی بھی وقت آ جا سکتی تھی۔ اسی لیے میں چند لمحات پرسکون ماحول میں گزارنا چاہتی تھی۔ میں سیر کر رہی تھی جب اچانک مجھے کسی نے پکارا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکا تھا جو اس دن مجھے درخت کے پیچھے سے جھانک رہا تھا۔ میرے ماتھے پر بل پڑ گئے اور میں نے کہا بولو کون ہو تم؟ وہ لڑکا مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ میں نے اس کی ظاہری شخصیت کا جائزہ لیا تو وہ ایک بااعتماد لڑکا تھا، لیکن اس کی شخصیت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ اس سے متاثر ہوا جا سکتا۔ وہ لڑکا بولا میں جانتا ہوں کہ آپ ہمارے گاؤں کی نہیں ہیں، آپ شاید کسی شہر سے آئی ہیں۔ میں نے جب آپ کو پہلی نظر دیکھا تھا تب سے آپ کو پسند کرنے لگا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں آپ سے شادی کر کے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں میں ہی رکھ لوں۔ آپ جیسے چاہے مرضی اپنی زندگی بسر کرتی رہیں، مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ میرے ماتھے پر پڑے بل مزید گہرے ہو گئے اور میں بولی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ کہاں تم اور کہاں میں؟ تم نے کبھی مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگتے دیکھا ہے؟ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ میرے ساتھ تمہیں یہ بات سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے تھی۔ وہ لڑکا ایک دم سے رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور بولا جاؤ، میں تمہیں بد دعا دیتا ہوں، تم اس گاؤں میں ہمیشہ کے لیے محصور ہو کر رہ جاؤ۔ تم یہاں سے نکلنا چاہو تو بھی نہ نکل پاؤ، تمہارے مقدر میں اداسی، غم اور پریشانی لکھتی جائے۔ میں بد دعا سن کر سہم چکی تھی، کیونکہ میں نے آج تک کسی کے منہ سے اپنے لیے بد دعا نہیں سنی تھی۔ وہ لڑکا چلا گیا تو میں بھی بھاگتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ گھر میں بھی میں اس لڑکے کی باتوں کو سوچ کر پریشان ہوتی رہی، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد ہی اپنی کزن کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے مجھے وہ لڑکا یکسر بھول گیا تھا۔ میں ایک دم پرسکون ہو چکی تھی اور رات میں دیر سے سوئی تھی۔ صبح اٹھی تو میں بالکل پرسکون تھی۔ میں نے ناشتہ کیا اور چہل قدمی کرنے کے لیے باہر نکل گئی۔ میں چہل قدمی کرتے کرتے کافی دور نکل آئی تھی۔ مجھے بہت ہی خوبصورت سا منظر نظر آیا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا اور ایک طرف کو بہت ہی خوبصورت نہر بہہ رہی تھی۔ مجھے پیاس بھی بہت لگی ہوئی تھی، اسی لیے میں بیٹھ کر نہر سے پانی پینے لگی۔ تبھی مجھے ادھر سے ایک عورت گزرتی ہوئی نظر آئی۔
वो मुझे नहर से पानी पीते हुए देखकर जल्दी से मेरे पास आई और मुस्कुरा कर बोली, बेटी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं एकदम हैरान हो गई कि ये औरत जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ, ये मुझे किस बात की मुबारकबाद दे रही है। मैं बोली, क्यों खाला, क्या बात है, आप मुझे क्यों मुबारकबाद दे रही हैं? वो औरत मुस्कुरा कर बोली, ये नहर हमारे गाँव में औलाद की नहर के नाम से मशहूर है। तुमने यहाँ से पानी पी लिया है, अब बहुत जल्द तुम बहुत ही खूबसूरत से बच्चे को जन्म दोगी। मैं उस औरत की बात सुनकर एकदम से सहम गई थी। फिर मुस्कुरा कर बोली, खाला कैसी बातें करती हैं, मैं तो अभी कंवारी हूँ, मैं कैसे बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। मेरी बात सुनकर वो औरत शदीद परेशान हो गई और बोली, कमबख्त, तुमने ये क्या कर डाला, तुमने तो खुद को बर्बाद कर लिया, तुमने तो अपने भाग ही उजाड़ लिए। अब यहाँ से उठकर भाग जाओ, इससे पहले कि कोई और तुम्हें यहाँ पर देखे और तुम्हारी बदनामी जगह जगह फैल जाए। मेरे तो पसीने ही छूट गए थे। मैं शदीद घबरा गई और तकरीबन दौड़ती हुई घर के जाने भागी थी। मैंने जैसे ही हवेली का गेट अबूर किया, सब मुझसे इस्तफसार करने लगे कि महक तुम कहाँ चली गई थी, हम सभी तुम्हें ढूंढ रहे थे। मैं उनकी बातों का क्या जवाब देती कि मैं अपने नसीब उजाड़ने गई थी। मैंने किसी की बात का कोई जवाब न दिया था। मैं अपनी मामा के कमरे में चली गई। वो उस वक्त अकेली ही बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मामा बोली, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों नहीं हो, और तुम सुबह से कहाँ गायब हुई थी? मैं बोली, मामा मैं तो गांव की सैर को निकली थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये गज़ब हो जाएगा। मेरी मामा भी एकदम से परेशान हो गई। वो बोली, बेटा क्या बात है, मुझे खुलकर बताओ, मेरा तो दिल बैठने लगा है। तब मैंने रोते हुए उन्हें सारा माजरा सुना दिया कि मैंने औलाद वाली नहर से पानी पी लिया। वहाँ पर एक औरत थी, उसने मुझे कहा कि तुम आज एक बच्चा जनोगी। मामा मुझे बचा ले, मैं बच्चा नहीं पैदा करना चाहती, मैं तो बदनाम हो जाऊँगी। आप तो जानती है ना, मैं तो किसी से मोहब्बत भी नहीं करती, मैं तो अभी अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ। मैं शदीद घबराई हुई थी, इसीलिए मैं तेज़ तेज़ बोलती चली गई। मामा ने मुझे अपने साथ लिपटा लिया था। वो बोली, क्या बात है महक, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की थी कि तुम गांव की एक अनपढ़ औरत की बातों में आकर इतनी परेशान हो जाओ। तुम खुद अच्छी भली समझदार लड़की हो, खुद ही मुझे बताओ, क्या लड़की अकेली ही औलाद जन सकती है? हरगिज़ नहीं। ये नहर का पानी इतना ही मुफीद होता तो आज हमारे मुल्क में कोई भी बे औलाद जोड़ा ना होता। इसीलिए मेरी बेटी तुम इन बातों में मत पड़ो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अम्मी की बातों ने मेरी ढारस बता दी थी। मैं सोचने लगी कि मैं बिला वजह ही उस औरत की बातों में आ गई। मैंने परेशानी को छोड़ दिया और अपनी कज़न के पास जाकर बातें करने लगी। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा था। रात हम सब ने मिलकर खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मैं बहुत गहरी नींद सो रही थी जब मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। मैं दर्द से तड़पने लगी थी। मैं उठ बैठी और इधर उधर देखने लगी कि अब रात के इस पहर क्या करूं। मैं उठकर कमरे में चक्कर लगाने लगी, मगर ये दर्द किसी तौर भी कम नहीं हो रही थी। मेरे कानों में उस औरत के कहे हुए जुमले गूंजने लगे। वो औरत कह रही थी कि तुम आज एक बच्चे को जन्म दोगी। ये सोचते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और अपनी मामा के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मैंने जैसे ही मामा के कमरे में कदम रखा तो फूट फूट कर रोने लगी। मामा भी गहरी नींद सो रही थी। वो मेरी आवाज़ सुनकर एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। मैं मामा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, महक क्या बात है, मुझे कुछ तो बताओ, तुम मुझे परेशान कर रही हो। मैं बोली, मामा जल्दी से किसी दाई को बुलाएं, मैं बच्चा जनने वाली हूँ। मेरी मामा एकदम से मुझे देखने लगी और बोली, महक क्या ऑल फॉल बकवास कर रही हो, तुम अभी कंवारी हो और कंवारी लड़कियाँ बच्चा नहीं जनती। तुमने उस औरत की बातों को सर पर सवार कर लिया है, शायद इसीलिए तुम्हारी हालत बिगड़ गई है। ये मेले की गोली खाओ और आराम से जाकर सो जाओ। लेकिन मुझे दर्द शदीद होने लगा था। मैं अम्मी के बेड पर लेटकर तड़पने लगी थी। मामा भी परेशान हो चुकी थी। सुबह के 3 बज चुके थे। मामा ने हवेली के मुलाजिम को भेजकर एक दाई को बुला लिया। वो कमरे में आई तो मैं उसे देखकर ही पहचान गई थी। ये तो वही औरत थी जिसने मुझे नहर पर पानी पीते हुए देखा था। वो मुझे देखकर बोली, या खुदाया, मैंने कहा था ना कि तुमने गजब कर दिया। तुमने उस नहर से पानी क्यों पिया? अब इसके नताइज क्या सामने आएंगे, अल्लाह ही खैर करे। दर्द इस कदर बढ़ चुकी थी कि मेरी आंखें बंद होने लगी। उस दाई ने मामा को कमरे से बाहर भेज दिया और तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने सुन होते हुए दिमाग से किसी नौज़ायदा बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी थी। उसके बाद मुझे कुछ खबर न रही। न जाने मैं कितने घंटे सोती रही थी। जब मेरी आँख खुली तो मेरे पहलू में एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था और साथ ही बैठी मेरी मामा आंसू बहाती जा रही थी। मामा बोली, महक ये क्या हो गया है? हम तो यहाँ खुशियाँ लेने आए थे, ये रुसवाई हमारा मुकद्दर क्यों बन गई? मैं गुस्से से फुनकार कर बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे क्यों ना बताया कि गांव में ऐसी कोई नहर भी मौजूद है? मामा रोने लगी और बोली, बेटी
मुझे ऐसी बातों पर सिरे से कोई यकीन था ही नहीं। ये तो हमारे बचपन का किस्सा था कि नहर का पानी पीने से औलाद हो जाती है। भला मुझे कहाँ इल्म था कि ये किस्सा तुम्हारा बचपन ही खा जाएगा। मामा बदनामी से बहुत खौफजदा हो चुकी थी। मेरे नाना अब्बू अपने गांव के चौधरी थे, वही पंचायत लगाकर फैसला सुनाया करते थे। अब अगर ये बात गांव में फैल जाती कि उनके शहर से आई कंवारी नवासी ने बच्चा जन्म दिया है तो उनकी क्या इज्जत रह जाती। मेरी खालाएं भी बहुत परेशान थी। समझ ही नहीं आता था कि ऊँट किस करवट बैठेगा। शाम हुई तो वही दाई मेरी खैरियत मालूम करने आई थी। वो मेरे पास ही आकर बैठ गई और मम्मा से कहने लगी, मेरी बहन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बच्ची मासूम है, इसने किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं किया। मैंने खुद इसे अपनी आंखों से नहर का पानी पीते हुए देखा है। मगर मैं जानती हूँ कि अगर ये बात हवेली की चार दीवारी से बाहर निकल गई तो आप लोगों की बहुत बेइज्जती होगी। अब मैं एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो आम हालात में बिल्कुल भी मुनासिब न होती और ना ही मैं ये बात करने की हिम्मत कर सकती थी। बात यह है कि अगर आप महक की शादी मेरे बेटे से कर देंगी तो मैं ये बात सबसे छुपा लूँगी कि आपकी कुंवारी बेटी ने बच्चा जना है। मैं गांव में ये मशहूर कर दूँगी कि ये बच्चा मेरी बड़ी बहू का है। वो 5 है, उसकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, मगर बच्चे की कोई उम्मीद नहीं है। इस तरह उसको बच्चा भी मिल जाएगा और आपकी इज्जत भी रह जाएगी। मामा बहुत परेशान थी। वो बोली, मेरी बेटी बहुत नाजों से पली है, ये यहाँ चूल्हे का काम नहीं कर पाएगी, इसका तो गांव के माहौल में दम घुट कर रह जाएगा। वो दाई बोली, शादी के बाद आपकी बेटी को महारानी बनाकर ना रखा तो फिर कहना, बल्कि मेरा बेटा भी शादी के बाद आपका ही हो जाएगा। दिल चाहे तो उसे भी अपने साथ ले जाइएगा। मामा ने सोचने के लिए टाइम मांगा तो वो दाई उठकर चली गई। मामा खाला से बातें करने लगी। मामा कहने लगी कि मुझे इस दाई की समझ नहीं आती, ये क्यों मेरी ऐबदार बेटी को इतने चाव से ब्याना चाहती है। खाला कहने लगी, सोनिया ज़्यादा मत सोचो, ये दाई गो के है तो गरीब ही मगर अच्छी औरत है, इसकी नीयत में कोई खोट नहीं है। ये तो बस इसलिए चाहती है कि तुम्हारी बेटी से अपने बेटे की शादी कर दे, क्योंकि ऐसे लोग अच्छे घरों में रिश्ता करने के शौकीन होते हैं। इसके लिए ये बड़े फ़ख्र की बात होगी कि इसके बेटे की शादी गांव के चौधरी की नवासी से हुई है। मामा परेशान थी कि बाबा को क्या जवाब देगी, मगर हालात से मजबूर होकर उन्हें इंतहाई कदम उठाना पड़ा और मुझे उस दाई के बेटे से निकाह करके रुखसत कर दिया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे अपने बच्चे से भी कोई ख़ास लगाव नहीं था और ना ही मैं उसका ख्याल रखती थी। एक ऐसा बच्चा जिसने मेरी खुशियाँ मुझसे छीन ली हो, वो क्यों कर मुझे अच्छा लग सकता है। शादी के दिन ही मेरी सास ने मुझसे इजाज़त लेकर वो बच्चा अपनी बहू को दे दिया था, जबकि मैं घूंघट ओढ़कर बैठी ये सोच रही थी कि आखिर ज़िंदगी ने मेरे साथ कैसा सितम कर डाला है। थोड़ी ही देर बाद मेरा शौहर कमरे में आ गया था। उसने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मेरा शौहर तो वही लड़का था जिसे मैंने उस दिन नाना अब्बू के बाग में धुतकार दिया था। मेरे चेहरे की उड़ती रंगत देखकर वो हंसकर बोला, महक बीबी, ज़िंदगी कभी कभी हमें सरप्राइज़ भी दे दिया करती है। मेरा नाम वकास है, शायद इससे पहले तुमने जानने की कोशिश न की हो। आज तुम मेरी होकर मेरे सामने बैठी हो, मगर तुम मेरी नज़रों में अपनी अहमियत खो चुकी हो। अम्मी कहती है कि तुमने नहर का पानी पिया था, इसलिए तुम्हें औलाद हुई है, मगर मुझे लगता है कि शहर की लड़कियों के किरदार पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि तुम और तुम्हारी माँ शहर से सिर्फ इसीलिए यहाँ पर आए हो कि तुम उम्मीद से हो गई होगी। मुझे नफ़रत है बदकिरदार लड़कियों से। वकास ने मेरे मुंह पर अल्फाज के कई थप्पड़ बरसा दिए थे। मेरी आंखों से कई आंसू टूटकर गिर पड़े थे। वकास उठकर बाहर चला गया तो मैं अपनी ज़िंदगी के मुतालिक सोचने लगी थी। हालात ने किस तरह पलटा खाया था कि मैं तो दंग ही रह गई थी। वो रात मेरी ज़िंदगी की बुरी रातों में से पहली रात थी। उसके बाद गमों के पहाड़ मुझ पर टूट पड़े थे। वकास उठते बैठते अल्फाज के चाबुक मुझे मारता रहता था। मेरी सास अच्छी थी, वो कहती थी कि तुम मासूम लड़की हो। मैं गवाह हूँ इस बात की कि तुम्हारे किरदार में किसी किस्म का कोई खोट नहीं है। तुम फिक्र न करो, एक ना एक दिन वकास भी सुधर जाएगा। मेरी जिठानी मेरे बच्चे पे जान मारती थी, सारा दिन उसके साथ खेलती, उसका ख्याल रखती। एक दिन वो मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, महक, एक बात कहूँ, तुम कभी मुझसे मेरा जामिन तो नहीं लोगी ना? शादी के इतने सालों बाद मेरी गोद में बच्चा आया है तो ऐसा लगता है कि ये मेरा ही है, मेरे वजूद का टुकड़ा है। अगर ये मुझसे दूर चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैं हंसकर बोली, मुझे इस बच्चे से कोई लगाव नहीं, मैं पागल नहीं हूँ कि एक चाहत करने वाली औरत से ये बच्चा छीन लूँ। वो मुझे दुआएं देती वहाँ से उठ गई थी। मेरी मम्मा शहर चली गई थी और इस बात ने वकास को शेर कर दिया था। अब वो मुझ पर हाथ उठाने लगा था। वो अक्सर कहता था कि तुमने मुझे एक बार ठुकराया था, मैं तुम्हें बार बार ठुकराऊंगा, तब तुम्हें इल्म होगा कि ये सब झेलना कितना करपनाक होता है। एक रात
मुझे ज़ामिन के रोने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। दिल में ख्याल आया कि जेठानी से जाकर पूछूं कि आखिर माजरा क्या है। मेरा जेठ शहर से बाहर होता था, इसीलिए मैं रात के पिछले पहर उसके कमरे की तरफ चल दी। कमरे से मुझे मेरे नाम की आवाज़ सुनाई दी तो मेरे बढ़ते कदम खुद ब खुद रुक गए थे। मेरी जेठानी रो रो कर मेरी सास से मुखातिब थी। वो बोली, अम्मी, शादी के इतने बरसों बाद अल्लाह ने मुझे औलाद दी थी, मगर आपने मुझे उसकी शक्ल भी न देखने दी और मेरे पहलू से उठाकर आपने मेरा बच्चा महक को दे दिया। मेरा बेटा, मेरे जिगर का गोशा 2 दिन मुझसे दूर रहा था। मुझे वो वक्त नहीं भूलता। मेरे दिल में बदगुमानी जगह बना चुकी है। मुझे इल्म है कि महक को इस बच्चे से कोई लगाव नहीं है, मगर वो इसी ईमान में जी रही है कि उसने बेटे को जन्म दिया है। जब मेरा ज़ामिन बड़ा हो जाएगा तो वो मुझसे इसे छीन लेगी। मेरी सास की आवाज़ है। वो मेरी जेठानी से कह रही थी, बेटी तुम गम न करो, ज़ामिन कल भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा है। तुम जानती हो ना, मैंने सारी ज़िंदगी बड़ी गुर्बत में गुजारी है, मगर मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। शराफत का दामन कभी नहीं छोड़ा, मगर इंसान औलाद की खातिर सब कुछ कर गुजरता है। मैंने ये सब वकास के कहने पर किया था। उसने महक को देखा और पसंद कर लिया। जब वकास ने महक से शादी की बात की तो उसने मेरे बेटे को झिड़क दिया। वकास ने उस दिन कसम खा ली थी कि हर कीमत पर महक को हासिल करके ही रहेगा। उसने मुझसे कह रखा था कि अम्मी, अगर आपने मेरे लिए रास्ते हमवार ना किए तो मैं महक को अगवा कर लूँगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल दहल गया था। तुम तो जानती हो ना कि वकास कितना ज़िद्दी है। वो अपना कहा सच करके ही रहता है। मैं नहीं चाहती थी कि चौधरियों की बेटी अगवा हो, इस तरह उनकी इज्जत खाक में मिल जाती और महक बेचारी की ज़िंदगी भी तबाह हो जाती। इसीलिए मैंने महक को इज्जत से ब्याह कर लाने के लिए ये सब किया। गो कि मेरा तरीका गलत था, मगर मेरा मकसद गलत नहीं था। मैंने अपने बेटे को इंतहाई कदम उठाने से रोकने के लिए बस इतना किया कि एक बचपन की भूली बसरी याद को ताज़ा कर दिया था। बचपन में सुना था कि इस गांव में ऐसी नहर है, जो लड़की भी उससे पानी पी ले वो हामला हो जाती है। मैंने तो वो नहर देखी भी नहीं थी कि कहाँ थी वो। जब उस दिन महक को पानी पीते देखा तो झूठ बोल दिया कि ये तो वही नहर है। और फिर दोपहर में मैंने एक जानने वाली के हाथ महक के लिए जलेबियाँ भेज दी। उनमें मैंने दर्द की दवा मिलाई थी। उस दवा का असर होते होते रात हो चुकी थी। इधर से तुम्हारी तरफ से खुशी मिली तो उधर महक की तबीयत बिगड़ गई। इसीलिए मैं ज़ामिन को उठाकर वहाँ ले गई। लेकिन देख, वादे के मुताबिक तुम्हारा बच्चा तुमसे मिला दिया ना। कभी कभार मैं सोचती हूँ कि मुझे वकास की मोहब्बत में ये इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी अच्छा शौहर साबित नहीं हुआ, बल्कि वो तो महक को जूते की नोक पर रखता है और उसको किरदार के ताने देता है। वकास ने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। ये बातें सुनकर मैं लरसने लगी थी। मुझ में मज़ीद खड़े रहने की हिम्मत ही न रही थी। इसीलिए मैं दबे कदमों अपने कमरे में वापस आ गई थी। वो सारी रात मैंने बड़ी अजियत में गुजारी थी। सुबह जैसे ही वकास घर से निकला तो मैं भी अपनी सास और जेठानी से नज़र बचाकर अपने नाना अब्बू की हवेली भाग गई थी। वहाँ जाकर मैंने अपने वालिदैन को फ़ोन करके गांव बुला लिया था। जब वो लोग आए तो मैंने सारा किस्सा खोल कर उनके सामने रख दिया था। अब्बू तो गुस्से से पागल ही हो गए थे। उन्होंने मुलाजिम को भेजकर वकास को हवेली बुलवाया और उसकी खूब दुर्गत बनाई। फिर ज़बरदस्ती मुझे तलाक दिलवाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। मैंने शहर जाकर अपनी तालीम का सिलसिला जारी कर लिया था। मैं जानती हूँ मेरी ज़िंदगी एक गलत शादी पर ख़त्म नहीं होगी। आगे अल्लाह